পাহাড়ের বাঁকে কুয়াশার খেলা আর পাখিদের কলতান সবই যেন এক মায়াবী স্মৃতি। আজ আমাদের লাত পাঞ্চারের সিরিজের শেষ পর্ব। চলুন এই সফরের শেষ মুহূর্তগুলো একসাথে ভাগ করে নিই। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজ সকালে আমরা চলে এসেছি ট্রোগানের ফটো করার জন্য। আজকে আমাদের লাস্ট ডে ফটোগ্রাফি। দেখা যাক আজকে আমরা এখানে ট্রোগানের ফটো পাই কি না। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি। ভালোই আছে ওয়েদারটা আজকে, কোনো রকম লাইটের অভাব নেই, লাইট খুব ভালো আছে। এবার একটাই গিয়ে দেখার যে ট্রোগান আমরা পাই কিনা। লেটস সি। এখন অবধি যে আপডেট আছে যে বলছে যে এখানটাই রোস্টিংটা করেছে ট্রোগানটা, এই পজিশনটাতেই। দেখা যাক এখানটা আমরা যদি কিছু পেতে পারি। ট্রোগান জাস্ট সাইট হয়েছে এক্ষুনি, কিন্তু নিচের দিকে আছে। দেখা যাক, সবাই অলরেডি ওয়েট করছে যদি দেখা যায়, কিন্তু নিচের দিকে বলে ফটোটা ঠিকঠাক উঠবে না, তাই জন্য আমরা ওয়েট করছি ওপরে উঠে আসার জন্য। হ্যাঁ, হ্যালো বন্ধুরা, অলরেডি আমাদের ট্রোগানের ছবি পাওয়া গেছে, কিন্তু অনেকটা ডার্ক এরিয়াতেও বসে আছে। দেবুদার ক্যামেরাতেই ছবিটা উঠেছে অনেকটাই নিচে বসে। যাই হোক, একেবারে আমরা নিরাশ হয়ে যাচ্ছিলাম প্রথমে যে কতটা পাবো কি না পাবো, কিন্তু সত্যি অ্যাটলিস্ট পাওয়া গেছে। দেখা যাক, আমরা এখনও হোপ করছি আবারও আমরা নেক্সট পাবো, দেখি। বন্ধুরা, আমরা হর্নবিলের উদ্দেশ্যে এসেছিলাম, কিন্তু হর্নবিলের ফটো আমরা পাইনি, ভেরি ব্যাড লাক। তবে একটাই হর্নবিলকে দেখা গেছে, পুরো পেয়ারটাকেই দেখলাম। মানে এই যে গাছটা দেখছেন পিছনে, আর এই গাছের এই ফলটাই ওরা খায়। তো ছুটে ছুটে আসা হলো, আমরা ট্রোগান সাইটিংয়ের পরেই ছুটে আমরা এখানে আসলাম। তো হর্নবিল ফটো পাইনি, কিন্তু দেখতে পেয়েছি। যে ছবি এসছে সেই ছবি মানে সেই রকম কোনো খুব ভালো ছবি না যেটা আপনাদেরকে আমি বলবো। তো কিছু করার নেই, দেখা যাক। তবু আমরা ওয়েট করছি একটু, যদি কোনোভাবে কোনো একটা সাইটিং হয়ে যায় তো ভালো হয়। ঠিক আছে, ওকে। ছবি তোলার সময় হঠাৎ করে ভুলেই গেছিলাম যে ব্রেকফাস্ট করতে হবে। তো হঠাৎ করে প্রতীক আমাদের জন্য এই ম্যাগির ব্যবস্থা করে দিল। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের বুকে হঠাৎ এরম গরম গরম ম্যাগি সত্যি একটা আলাদাই মজা। তো বেশ ভালোই লাগছে। যাক, আমরা একটুখানি ব্রেকফাস্ট সেরে নিচ্ছি এই মুহূর্তে। আজকে আমরা জাস্ট ভিডিও নিয়ে বলতে পারি আশা কমই যে আমরা হর্নবিলের ছবিটা তুলতে পারবো। তবুও মানে দেখা যাক, কারণ ওরা এখনো সেই একই ওই গাছটাতে বসে আছে, কিন্তু সেই গাছে আমাদের ওখানে গিয়ে ছবি তোলাতে তো মানে তোলাটা খুবই ডিফিকাল্ট। তো আমরা এখানেই ওয়েট করছি। এখানেই আমরা এখন ঠিক করলাম যে একটু ব্রেকফাস্ট করে নেবো, করে নিয়ে যদি কোনোভাবে সুযোগ আসে তাহলে সেই ছবিটা তুলবো, দেখি কি হয়। আমরা এখন একটু ভেতরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি, দেখছি যদি এখানে কিছু পাওয়া যায়। এই রাস্তা ধরে এই ফরেস্টের দিকে আর একটু যাওয়ার চেষ্টা করছি।
তো বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসেছি আবার হোমস্টেতেই চলে এসেছি। তো আমরা কি হলো আজকে খুব ব্যাড লাক যে কোনো মতেই খুব আমরা মনটা খারাপ যে আজকে খুব ভালো ছবি তো পেলাম না। যাই হোক, কি করা যাবে, এটা তো সম্ভব না যে আমরা প্রতিবার আসবো এবং হর্নবিল আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে কিছু ভালো শট দেওয়ার জন্য। যাই হোক, যে ছবিটি পেয়েছি সেটি আপনাদের কাছে শেয়ার করছি আর নিজের মনের কথা আপনাদের প্রকাশ করছি। আর এখন আমরা যাচ্ছি দেখুন এখন আমরা কোন কোন বার্ডে ছবি তুলবো তাহলে এখন আমরা আমরা এখন ওই পাশটায় যাবো একটা মিসেস গোল্ডিয়ান গোল্ডিয়ান সানবার্ডের এখন আমরা সাইটিং এর জন্য যাব। আর এখন আমরা আমরা আরেকবার যদি টাইম পাই, আমাদের যদি মানে লাইটও ঠিকঠাক থাকে, কারণ এখন আজকে একটু কুয়াশার মতন মানে মেঘলাচ্ছন্ন আছে, তো যদি লাইট ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমরা টোগানটা আরেকবার ট্রাই করব বিকালের দিকে। আর একটা হচ্ছে এখন আজকে তো এমনি 26শে জানুয়ারি চারিদিকে পিকনিকের পরিবেশ, মানে এখানেও পিকনিক হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তো ভালোই লাগছে। তো যাই হোক আমরা এখন লাঞ্চ করব, জাস্ট লাঞ্চ করেই এক্ষুনি লাঞ্চ করে আমরা বেরিয়ে যাব। এখন দেবুদা আমাদের লাঞ্চটা বেড়ে দিচ্ছে, আমরা এখন লাঞ্চ করব। সুন্দর সুন্দর গরম ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, আর একটা কি সবজি, সবজিটা দেখতো কি আছে, लाव तरकारी लौकी। अच्छा, और क्या है भाभी जी, क्या ला रहा है? ये है आपका सैलड है और अंडा करी। थोड़ा अंडा करी भी दिखा दो सभी को। अंडा करी वाह দারুণ। লাঞ্চ করে চলো আমরা আবার রেডি। এখন বন্ধুরা আমরা এটা আরেকটা স্পটে আছি যেখানে গোল্ডিয়ান সানবার্ডের জন্য, তো দেখা যাক কি হয়। আমরা এখন মিসেস গোল্ড মেল ফিমেল দুটোকেই ক্যাপচার করতে পেরেছি। আর তার সাথে স্পাইডার হান্টারও ছিল, খুব সুন্দর সুন্দর পোজ দিয়েছে, একদম অসাধারণ। এই জায়গাটা একদম বার্ডিংয়ের জন্য একদম আদর্শ জায়গা, কিন্তু কিছু বুঝতে হবে বার্ডিং করার সময় যত কম কথা বলা হবে তত ভালো। তো জাস্ট এখন বার্ডিংয়েই আমরা করি, মনোযোগ দিচ্ছি, পরে আপনাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করব। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এর পিছনে একটা সুন্দর মনেস্ট্রি আছে, খুব সুন্দর, খুব ভালো লাগছে দেখে। তো আপনাদের সাথে জাস্ট একটু শেয়ার করে নিলাম এইটুকু। তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ফটো তোলা, বার্ডিং সব কমপ্লিট, ম্যাক্সিমাম যতটা পাওয়া যায় সেটা আমরা করেছি। আর সবথেকে বড় ব্যাপার, প্রতীক আমাদেরকে মানে সব রকম যত দিক দিয়ে পেরেছে সেটা হেল্প করেছে। মানে মিস যেটা গেছে সেটা গেছে, সেটা তো একবারে আমি জানি কখনোই সম্ভব না। তো নেক্সট টাইমের জন্য আমাদের এগুলো তোলা রইলো, আমরা নেক্সটবারও আবার প্রতীকের সাথে নিশ্চয়ই আসবো, সেটাই আমাদের রয়েছে। কারণ প্রত্যেকের একটা সময়ের ব্যাপার আছে, সেটা আমরা জানি না কখন কি টাইম পাবো, কিন্তু আমরা এই 3 দিন যে সময়টা কাটিয়ে গেলাম এটা হয়তো সারা জীবনের মতন মনে থাকবে। এটা হয়তো প্রতীকও ভুলবে না আমার মনে আশা করি, যদিও প্রতীকের এরকম বিভিন্ন লোক থাকে তাদের সাথে সে প্রতীক ছবি তোলে, কিন্তু এই যে সময়টা কাটিয়ে গেছি এত সুন্দরভাবে, মানে ওয়েদার বলুন বলুন, একটু অসুবিধা হয়েছে লাইটের, জানেন তো এখানে তো পাহাড়ে তো কখনো এইটা বলতে পারবো না যে আজকে আমাদের সুন্দর মানে একদম রোদ ঝলমলে আকাশ থাকবে, আমরা খালি ছবি পেয়েই যাব, এরকম তো হয় না। তবে যেগুলো এরকমই এমন কিছু ছবিও পেয়েছি, পাখির ছবি পেয়েছি আমরা, তোমরাও বলো যেটা মানে সেটা এক্সপেক্ট করিনি যে এরকম পাবো। এবার তোমরা কি মতামত দিচ্ছ বলো একটুখানি, সবার সাথে তোমরাও শেয়ার করো। না মানে এটা সম্পূর্ণ একটা অন্যরকমের অভিজ্ঞতা। মানে পাহাড়ে তো আমরা সবসময় বেড়াতে আসি, কিন্তু সেটা হচ্ছে মূলত সিনিক বিউটির জন্য, একদম। কিন্তু এবারে উদ্দেশ্যটা সম্পূর্ণই আলাদা ছিল। পাহাড়
পাহাড়ে ঘুরলে প্রত্যেক মোড়ে মোড়েই সিনিক বিউটি পাওয়া যাবে, সেটা ভীষণ ন্যাচারাল ব্যাপার। কিন্তু এবারে মেন উদ্দেশ্যটা ছিল বার্ডিং, একদম বিভিন্ন ধরনের অ্যালপাইন যে বার্ডস গুলো, পাহাড়ি পাখি, সেগুলোকে দেখা, সেগুলোকে খুঁজে বের করা বা পারলে তাদের ছবি তোলা। তো সেটাতে মোটামুটি আমরা সফল, এটা বলা যেতেই পারে। একদম এবং তার একটা বড় কৃতিত্ব অবশ্যই প্রতীক ভাইয়েরও, একদম, কারণ ও একদম। স্পট করতে আমাদের ভীষণভাবে সাহায্য করেছে। একদম একদম এই আর কি। বাহ So last time, Pratik Bhaiya, hip hip hooray! हाँ अरे क्या उज्जवल तुम कुछ बताना चाहते हो तो हाँ, बताओ बिल्कुल बिल्कुल बोलो बोलो वैसे भी दिस वाज माय फर्स्ट बर्डिंग एक्सपीरियंस, तो इट वाज फुल ऑफ एडवेंचर। तो प्रतीक भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और व्यूअर्स का भी, कि वो लोग हमको देखेंगे तो हमने भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम फिर से बर्डिंग ट्रिप करें, तो आप लोगों के साथ फिर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सो इट वाज ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, और मतलब एक बार तो नहीं, बार बार आने लायक जगह है ये, और बहुत अच्छा कुछ देखने को मिला, बर्डिंग, सीनिक ब्यूटी, सब कुछ। और अभी बैकग्राउंड में जो मोनेस्ट्री है, ये एक ऐसी विलेज का मोनेस्ट्री है जो इतना खूबसूरत है, तो आप और भी जगह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा जगह है। और आज 3 दिन का टूर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इस उम्मीद के साथ कि हम दोबारा फिर आएंगे इस जगह पे बर्ड्स को देखने के लिए और इस एकदम, सीनिक एकदम। ब्यूटी को फिर से एंजॉय करने के लिए। एकदम सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन Thank you. थैंक यू 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের সেই পাহাড়ি বিকেলটা ছিল এক অনন্য পাওনা। ফেরার পথে হঠাৎই দেখা হলো একদল স্থানীয় মানুষের সাথে, যারা খোলা মনে আমাদের নিমন্ত্রণ জানালো তাদের পিকনিকের আনন্দে সামিল হতে। অচেনা মানুষগুলো মুহূর্তেই আপন হয়ে উঠল। পাহাড়ের সেই সহজ সরল আতিথেয়তা আর তাদের সাথে কাটানো সেই হাসি খুশি মুহূর্তগুলো আমাদের ক্যামেরার লেন্সের চেয়েও মনের গভীরে বেশি জায়গা করে নিল। সত্যি সেরা এই মুহূর্তগুলো মাঝে মাঝেই এমনভাবে বিনা পরিকল্পনায় ধরা দেয়, তা কখনো বোঝানো যায় না। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? এখন আমরা একটু সন্ধেবেলা বসেছি আমাদের পরিচিত মানুষ প্রতীক গুরুমের সাথে। তো প্রতীক গুরুম আমাদের সাথে আজকে বসেছে এই কারণে, কারণ আপনাদের সাথে আমরা যেটা শেয়ার করতে চাই যে লাতপাঞ্চার তো আমরা শুনেছি, নাম জানি, সবাই জানি, কিন্তু লাতপাঞ্চারের অনেক কিছু বিশেষত্ব আছে। কি জন্য লাতপাঞ্চারটা বিখ্যাত সেটা তো আপনারা কিছুটা জানেন, কিন্তু আরও যদি একটু ভালো করে জানতে চান সেটা আমরা একটু প্রতীকের সাথে আলোচনা করব। তো আমি প্রতীককে জাস্ট কিছু আপনাদের সাথে কথা বলতে বলবো, যে জানাতে বলবো, জাস্ট শেয়ার করাবো যেখানে আসলে আপনারা কি কি পাখি পেতে পারেন, তাছাড়াও এছাড়া এখানে মানে আসলে আপনাদের কি কি মানে ঘোরার জায়গা আছে, এই নিয়েই সামান্য কিছু আমরা আলোচনা করব। तो प्रतीक कैसे हो? एकदम बढ़िया बढ़िया है। तो प्रतीक पहले ये बताओ, अगर हम लोग को लातपंचर में आना है तो हम लोग कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? अब ये तो सबसे पहले तो आप बुकिंग फोन में मुझे करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ओके ओके। उसके हिसाब से अगर आपको गाड़ी चाहिए, चाहे आपको पिकअप करना है एनजीपी से या तेंजिंग नोगे बस स्टैंड, बागडोगरा एयरपोर्ट, तो वही अवेलेबल गाड़ी कर देंगे, वहीं से आप लोग पिकअप ठीक है करके आ ठीक सकते हैं। ठीक है। और मान लो किसी को अगर वो एनजीपी में तो उतर गया तो गाड़ी जो आएगा तो गाड़ी कौन प्रोवाइड करेगा, आप कर दोगे? हाँ, अगर गेस्ट लोग नीचे से हायर करके भी ले आ सकते हैं लाभ पंचर तक। तो अगर वो लोग मुझे भी अगर मतलब क्या बोले उसको, मतलब ले आने के लिए बोलेंगे तो बुकिंग हाँ, वो करनी भी available वो कर भी देंगे। अवेलेबल तुम कर सकोगे, कोई इसमें कोई भाई प्रॉब्लम इशू प्रॉब्लम नहीं नहीं होगा। एकदम तो ये अच्छा तो है। बढ़िया है। और ये बात एक वो लोग के लातपंचर में लोग आएगा, ठीक है, लातपंचर के बारे में बहुत लोग अभी बर्डिंग के लिए अभी इंटरनेशनली वो मुझे लगता है लातपंचर के बारे में जानते हैं, लेकिन ये लातपंचर सबसे इसलिए किस लिए ज्यादा फेमस है, इधर में आएगा लोग किस लिए, क्यों आएगा? एक्चुअली अभी पहले तो जब
यहाँ पे टूरिज्म जब स्टार्ट हुआ था तब तो आपका सबसे पहले यही टोड और आप स्नैक्स के लिए 2010 से आगे थोड़ा बहुत आता था गेस्ट लोग, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ कि रूफस्नेक हॉर्नबिल बोल के अच्छा। एकदम इंडेंजर स्पीसीज एकदम वो मिलने लगा, और थोड़ा बहुत सबका मतलब क्या अवेयरनेस बढ़ गया, एकदम तो जो भी ज्यादातर बर्डर्स लोग का अट्रैक्शन हो गया, तो धीरे धीरे 2011 से स्टार्टिंग हो गया बर्डिंग। तो हम भी थोड़ा बहुत उस टाइम उतना वो नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो बाद में जब जैसे बर्डिंग के थ्रू गाइड, तो प्रोफेशनल गाइड तो नहीं है, लोकल गाइड है हम लोग के, तो ऐसे 2-3 जन स्टार्ट किया, अच्छा तो धीरे धीरे इसी के हिसाब से अभी बर्डर्स लोग आते हैं। एकदम। तो तुम कितने साल पहले से स्टार्ट किया था? मैं करीब स्टार्ट किया, एकदम फर्स्ट स्टार्ट तो किया था मतलब एक ऐसे पोर्टर के हिसाब से, एकदम जो मेरे से जो सीनियर जो भैया लोग थे उनके हिसाब उसके पीछे चलते थे, तो 2015 से मैंने स्टार्ट किया। तब तुम कितने उम्र के थे? तब एज तो मोटा मोटी 24 ऐसा ही वाह, होगा। बहुत ही छोटे उम्र में स्टार्ट जी, कर जी, दिया जी, था। जी। तो मतलब अभी जितना हो गया बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, जी, कौन जी, सा करीब क्या 10 बाट है। साल, 10-11 साल हाँ, हो तो गए। मतलब ये कौन- एरिया का, हाँ, ये एरिया का बारे में इसको पूरा डिटेल पता है कि कौन सा क्या बर्ड है, कौन सा बर्ड का कौन सा स्पीसीज है जी, जी। लेकिन एक बर्ड का भी बहुत सारा स्पीसीज हो जी, सकता जी, है, जी। वो भी ये सही से बता सकते जो हैं। भी हमारा हाँ, local मैं भी जगह हम लोग भी sighting जब फोटो खींच रहे थे ना, जी, जी। वो हम भी नहीं जानते ये कौन सा स्पीसीज है, ये बर्ड को मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन तुम बोले नहीं ये बर्ड ये अलग है, सेम ही बर्ड है लेकिन ये स्पीसीज अलग दोनों है। जी, ये सच में ये प्रतीक इसका एक्सपीरियंस ही इसको बता सकता है कि कैसे वो कौन सा क्या बर्ड है। अच्छा प्रतीक, ये भी बताओ इधर में क्या सिर्फ बर्ड ही मिलता है या और कुछ भी मिल सकता है? और भी मतलब यहाँ पर 2-3 जगह है, मतलब अच्छा फैमिली लोग के लिए भी साइट सीन, मतलब यहाँ पे आके आपका 2 दिन 3 दिन स्टे कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि कोई आप ट्रैकिंग करेंगे, हाइकिंग एकदम, वगैरह वो भी एकदम। कर सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग वगैरह है, आपका एक छोटा सा मोनेस्ट्री है, और थोड़ा आलड़ा बोल के व्यू पॉइंट है, आलड़ा, उसके हाँ, तरफ हाँ, करके भी आपका बेसिकली इसको सिटोंग 3 के अंदर पड़ता है हमारा अच्छा। लाटपंजर। यहाँ पे जो सिटोंग ग्राम पंचायत है उसके अंदर पड़ता है, तो उसके अंदर आपका बहुत सारे साइट सीन करने हैं, जैसे कि नामथिंग लेक वगैरह है, जहाँ पे आपका रेनी सीजन में आपका सैलेमेंडर बोलते हैं हिमालय में, ये सब मिलता है, और जोगी घाट के तरफ हैंगिंग ब्रिज वगैरह है, ये सनराइज व्यू पॉइंट है आरडारा है ना, उसके आसपास आपका ऑरेंज ट्री गार्डन है, अब कर सकते हैं यहाँ पे कम से कम का 2 दिन 3 दिन फैमिली भी आराम से। तो इधर आने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? एक्चुअली देखा जाए बर्डिंग के लिए तो अभी तो थ्रू आउट द ईयर ही मतलब मिल रहे हैं, मतलब जो रेनी सीजन 1-2 मास छोड़ के आपका कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाटपंचर में आपका क्या होता है कि यहाँ ट्रॉपिकल वो है, तो आपका इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर आपका अलग अलग सीजन में आपका, जैसे कि आप दिसंबर के टाइम में उसके आपका अलग बर्ड्स मिलेगा, और जैसे कि आप अभी ये टाइम पे आया है जनवरी फरवरी, इसमें फ्लावरिंग होता है, उसमें फिर आपका सनबर्ड्स वगैरह ये सब आपका, और फिर मार्च अप्रैल में आपका सभी बर्ड्स का मीटिंग टाइम और नेस्टिंग टाइम स्टार्ट होता है, उस टाइम आपका अलग स्पीसीज मिलेगा। पूरा एकदम ही एक महीने मान लो कोई 2-3 महीने के मतलब यहाँ पे वो होता है। अच्छा, 2-3 महीने का अंतर में बहुत कुछ ये चेंज हो जी, सकता है। जी, जी, जी। मतलब ये आज अभी बर्ड्स यहाँ पे जनवरी- आते हैं, कोई यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए आते हैं, एकदम। ये सब एरिया में, हाँ, है ना? अच्छा, कोई region बर्ड में। मतलब अभी जो महीना में महीना में जो बर्ड है वो दूसरे महीना में नहीं भी मिल सकता हाँ, है, नहीं भी मिल सकता। क्योंकि वो माइग्रेट करता रहता है, जी। वो कभी कभी फीडिंग के लिए भी करता है, कभी कभी वो आपका क्या बोलते हैं ब्रीडिंग के लिए भी कर रहा है, ये कुछ भी हो season है, सकता जी। है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ तुमने कुछ एक्सेप्शनल कोई बर्ड देख लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता है लेकिन इधर में आ गया, कोई ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, मतलब जैसे कि आप देखिए उतना मुझे भी हुए इसमें, जैसे कि हॉस्कन फ्रॉगमॉथ बोल के एक है, अच्छा, मतलब वो एकदम ही रेयर है, एकदम ही लेकिन आपका जब भी हम लोग ये मई के टाइम में, अब मार्च से थोड़ा एंड में जब वो कॉल्स ये करते हैं तो वो रेस्पॉन्स करते हैं, फोटो भी होता है, फोटो भी होता है। लेकिन बाद में जब दूसरे, जैसे कि अभी के टाइम में हम जितने भी उसको सर्च करने लगे तो मिलता नहीं है, लेकिन वो समझो वो मुझे एकदम मतलब मेरे लिए भी वो मतलब साल में एक ही बार साइटिंग होता है, तो अच्छा, 1-2 मास, तब ये मुझे बहुत वो लगता है। अच्छा, मतलब
कोई आकर निराश नहीं होगा। हम लोग भी जैसे आए हैं, मतलब कुछ तो हाँ, ये हो ही जाए। अच्छा और भाई बताओ, ये इधर में क्या हाइटिंग भी होता है, मतलब अभी मतलब क्या है हाइट, अभी 1-2 साल से मतलब इतना परमानेंट हाइट नहीं है यहाँ पर हमारा लाठपंचर में। 2 दिन हमारे दोस्त लोग भाई लोग ने स्टार्ट किया है। मतलब इसमें आप फीडिंग भी नहीं करते, एकदम जो फॉरेस्ट का गाइड है उसके अनुरूप सिर्फ पानी देता है। अच्छा, बस उसी में मतलब थोड़ा बहुत अभी इतना मतलब ये सीजनल हाइट है, एकदम ये नहीं कि प्रोफेशनल ये नहीं है। मतलब अभी धीरे धीरे मतलब नेचर जैसा है, नेचर को वैसे ही रख के बाटिंग करना चाहिए। उसको अगर हम कुछ उसका खिलाफ चले जाएंगे तो वो तो खराब है। लेकिन आज ही हम लोग देख रहे थे सेंचल में जब जा रहे थे, वहां पर अच्छा से मैं देखा, ये मुझे अच्छा लगा, फॉरेस्ट डिवीजन उसमें क्लियरली लिखा है नो ड्रोन अलाउ, उसके बाद लिखा है नो प्लास्टिक अलाउ। ये अच्छा, ये मुझे लगता है, मैं भी प्रतीक मैं बोलना चाहूंगा, मैं इधर भी कुछ देखा, तुम लोग का तो बडिंग का एक ग्रुप होता है, तुम लोग तो करते हो, तो तुम लोग का मुझे ये देख के लगा तुम लोग भी इधर में ऐसा ही लिखने से अच्छा होगा कि नो प्लास्टिक, प्लीज डू नॉट यूज प्लास्टिक का फेंकते भी हो तो कुछ सही जगह में फेंक दो, क्योंकि ये खराब है मुझे लगता है, क्योंकि आपका तो यही है, टूरिज्म में ही आपका सब कुछ है। तो इतना साफ सफाई रखेगा तो उतना अच्छा होगा। और जो अभी इससे क्या होगा, जो फॉरेन टूरिस्ट भी है वो भी अट्रैक्ट होगा। और ये भी मैं बोलना चाहूँगा, इधर का जो प्रशासन है वो भी थोड़ा इन लोगों को देखे हेल्प करे, क्योंकि ये टूरिज्म की वजह से ही इन लोगों का घर चलता है, सही ना। तो ये भी देखना चाहिए ये लोगों का कैसे चलेगा, कैसे टूरिज्म को और भी इधर में प्रमोट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से भी मैं बोलना चाहता हूँ, या इंटरनेशनल कुछ भी हो, इसमें हो, सेंट्रल भी हो, ये कैसे लाठपंचर को और भी ज़्यादा प्रभावित कर सके टूरिज्म के लिए, ये मुझे लगता है करना चाहिए। क्योंकि ये जो इसका जो भी फैमिली चल रहा है इधर में, ये कितना आदमी का गाँव होगा, कितना लोग रहता है ये गाँव में? अभी आप देखे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मतलब सेंसस के मतलब एग्जैक्ट तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, फिर भी अराउंड लगभग होगा 7-8 हजार, लेकिन उसमें भी ज्यादातर फैमिली टूरिज्म के वजह से ही चल रहा है। मैं भी यही देखा कि अदर में ज्यादातर टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये अगर देखेंगे तो इनिशिएटिव लेंगे मैं जो बोल रहा हूँ इंटायर लाठपंचर का ही है जो मैं पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, लेकिन सिटोंग ग्राम 1, 2, 3 ये तो बहुत बड़ा ही ये ठीक है। देखिए जैसे हम लेप्चा जगत में देखा, वो थोड़ा बड़ा हो गया, अभी उसका अच्छा चल रहा है, तो ये भी जगह को डेवलप करना चाहिए। ये मैं बोल सकता हूँ गाँव में आया बहुत साफ सुथरा है इसका, जो अभी जो मैं क्या बोलूँ, इसका जो भी हमारे साथ वो उसने प्रोवाइड किया, मान लीजिए उस होटल का रूम, खाना पीना, ये भी सच में ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने गेस्ट को कितना अच्छा सर्विस दे सके। वो बार बार ये कोशिश करे, वो बार्डिंग के टाइम में भी हो या रूम में भी हो, जैसे हो। तो अच्छा लगा। प्रतीक, तुम कुछ अगर बोलना चाहते हो इसमें कि अपना दर्शकों को कुछ बोलो, तुम्हारा जो। चलो हाय, मेरा नाम प्रतीक गुरुंग है, मैं ये लाठपंचर से बिलोंग करता हूँ और सर के ब्लॉग में आके बहुत खुश लग रहा है कि अपने बात रख पा रहा हूँ। यही हो कि आप लोग भी विजिट करिए, जितना भी सर का व्यूअर्स है, आइए हमारे गांव में एक बार खातिरदारी करने का मौका दीजिए, ये बोल सकता हूँ। आके देख के जाइए, विजिट लाठपंचर। थैंक यू। লাঠপাঞ্চারে আমাদের শেষ দিনটা শেষ হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু সাথে নিয়ে যাচ্ছি পাহাড়ের স্তব্ধতা আর একরাশ অম্লীন স্মৃতি, যা আমাদের হৃদয়ে থেকে যাবে চিরকাল। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধুরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক ও শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।